السلام علیکم، آپ دیکھ رہی ہیں بول نیوز، میں ہوں شمائلہ ارشد۔ میں ہوں شرجیل ارشد۔ بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ رمضان المبارک کے لیے متعلقہ اداروں کو سودمند پیکج اور سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی جائے تاکہ مستحق افراد کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ کمزور اور سفید پوش طبقے کی مالی معاونت اور سماجی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی حکومت کے مجوزہ رمضان پیکج اور گزشتہ سال رمضان پیکج کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی گزشتہ رمضان پیکج کی شفافیت پر مستند آڈٹ ادارے کی رپورٹ پر متعلقہ اداروں کی ستائش۔ کہا حکومت نے غریب عوام کو ارزاں نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے ایک مؤثر اور شفاف نظام متعارف کرایا۔ یوٹیلیٹی سٹورز میں موجود بدنظمی اور بدعنوانی کے نظام کو شفاف طریقہ کار میں تبدیل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آئندہ رمضان کے لیے پچھلے سال سے زیادہ مؤثر اور فائدہ مند پیکج تیار کیا جائے۔ امدادی رقوم کی تقسیم ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے یقینی بنائی جائے تاکہ مستحق افراد کی عزت نفس محفوظ رہے اور کیش لیس معیشت کو فروغ ملے۔ شہباز شریف نے کہا کہ مؤثر نگرانی کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ اور منظم مانیٹرنگ کا نظام بھی وضع کیا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ عالمی شہرت یافتہ آڈٹ فرم نے رمضان پیکج کو شفاف اور مؤثر قرار دیا ہے اور کسی مالی بدعنوانی یا سنگین انتظامی خرابی کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سوشل پروٹیکشن والیٹ متعارف کرایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے مارچ 2026 سے امدادی رقوم ڈیجیٹل طور پر تقسیم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سجوانی گروپ کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ پاک UAE تعلقات اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شیخ محمد بن زائد کے حالیہ دورے سے دو طرفہ شراکت داری مزید مضبوط ہوئی۔ حکومت IT، ڈیجیٹل جدت اور بلاک چین میں B2B تعاون کو اہمیت دے رہی ہے۔ ڈیجیٹل معیشت میں اماراتی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سجوانی گروپ نے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ایک بار پھر ریکارڈ ترسیلات بھیج کر وطن سے محبت کا ثبوت دے دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق دسمبر میں ترسیلات زر 6.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ کمائیں گے باہر، کھلائیں گے یہاں، پردیس میں رہنے والوں کا دل دیس میں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ریکارڈ زر مبادلہ بھیج دیا۔ ترسیلات زر میں سالانہ بنیادوں پر 16.5% اضافہ ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دسمبر میں ترسیلات زر 3.6 ارب ڈالرز رہیں۔ ماہانہ بنیادوں پر ترسیلات میں 12.5% بڑھوتری ہوئی۔ مالی سال 2026 کی پہلی شش ماہی میں ترسیلات 19.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ وفاقی آئینی عدالت میں سپر ٹیکس کیسز کی سماعت چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ مختلف کمپنیوں کے وکیل مختوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹیکس کی بڑھتی ہوئی شرح سے کاروبار مشکل کا شکار ہو گیا ہے۔ پیٹرولیم کمپنیوں کے استثناء کو ختم کرنا قوانین اور پیٹرولیم ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ صدر کے اختیارات فرد واحد کے نہیں بلکہ ایگزیکٹو اتھارٹی آف فیڈریشن کے تحت ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 12 جنوری تک ملتوی کر دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط ہیں۔ اس بات کا اعتراف امریکی سفارتکار کی جانب سے کیا گیا۔ اینڈی ہلز کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کئی مواقع پر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کی تعریف کر چکے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت تاریخ کی بہترین سطح پر ہیں۔ پاکستان کی مؤثر خارجہ پالیسی کے نتائج سامنے آنے لگے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ابھرتے سفارتی کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ عالمی جریدے ڈپلومیٹ نے پاکستان کی سفارتکاری، دہشت گردی کے خلاف واضح موقف اور عالمی اور علاقائی معاملات میں فعال کردار کو کھل کر تسلیم کر لیا۔ پاکستان کی بہترین سفارتی پالیسی اور ابھرتے ہوئے عالمی کردار کی دنیا معترف ہو گئی۔ متوازن خارجہ حکمت عملی کے نتیجے میں پاکستان خطے میں ایک مؤثر ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے۔ حکومت، ریاستی اداروں اور عوام کا دہشت گردی کے خلاف دو ٹوک موقف عالمی سطح پر پذیرائی حاصل کرنے لگا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعمیری تعلقات اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو کامیابی سے متوازن رکھا ہے۔ عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق بہترین سفارتکاری کی بدولت پاکستان خطے میں مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ آئرن برادر چین نے پاکستان کے
बढ़ते हुए मौसर किरदार और सिफाती कामयाबी को भरपूर अंदाज में सराहा। दी डिप्लोमेट के मुताबिक चीन पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क तस्वुर करता है जो माशी तौर पर मजबूत होने के साथ साथ सरहदों से बाहर भी मौसर किरदार अदा कर रहा है। अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात के साथ साथ पाक चीन दोस्ती भी दुरुस्त सिमत में मजबूती से आगे बढ़ रही है। चीन ने आलमी और इलाकाई मामलात में पाकिस्तान के अहम किरदार की अहमियत का अयादा किया। सलामती काउंसिल और शंघाई ताउन तंजीम की सदारत के लिए भी चीन पाकिस्तान को एक मौजू और अहल उम्मीदवार करार देता है। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान भी चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को इंतहाई अहम समझता है। चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार किया है। चीन ने मसला कश्मीर के हल पर सलामती कौंसिल की करारदाद के मुताबिक अमल दरामद पर जोर दिया, जबकि अफगान तालिबान से जामे हुकूमत के क़याम और शिद्दत पसंदों के खिलाफ काबिल तस्दीक इक़दाम का भी मुतालबा किया। माहिरीन के मुताबिक खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसियों की हिमायत पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तौसीक़ है। आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट की रिपोर्ट पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ पर एक मोहर तस्दीक है। वज़ीर KP की आमद कराची का नज़्म नस्क़ दरहम बरहम कर गई है। हुकूमत सिंध ने सोहेल आफरीदी का गर्मजोशी से खैर मकदम किया। ताहम PTI कारकुन हत्ते से उखड़ गए, कभी आपस में उलझ पड़े तो कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पर चढ़ दौड़े। इस अफरा तफरी ने ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आना खैर की खबर ना बना। शदीद नारेबाजी, भरपूर हुल्लड़बाजी एयरपोर्ट को मछली बाजार बना गई। PTI अरकान आपे से बाहर हुए और अपने ही साथियों पर हाथ छोड़ दिया। अफरा तफरी ट्रैफिक पर असरअंदाज ना हो कैसे मुमकिन था। सड़क पर गाड़ियां जैम हुई, मंजिल मुश्किल और सफर दुश्वार बना दिया। एक जानिब सोहेल आफरीदी की आमद पर कुछ भी सहल न था, दूसरी जानिब हुकूमत सिंध मेहमान का शायान शान इस्तकबाल कर रही थी। वज़ीर आला KP को खुशामदीद कहने सईद गनी एयरपोर्ट पहुंचे, सर पर सिंधी टोपी सजाई, शानों को अजरक से जीनत दी, मगर PTI अरकान की हंगामा आराई रंग में भंग मिलाती रही। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम की शिकायत मौसूल हो रही हैं। शारा फैसल पर रैली की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। FTC से शहीद मिल्लत जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक का दबाव है। इसके अलावा सदर और MA जिन्ना रोड पर भी ट्रैफिक जैम है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, कितना वक्त गुजर चुका है ट्रैफिक जैम को और ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है। एयरपोर्ट से की जानिब से सदर की तरफ आने वाला सड़क है। बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल सामने आ रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जो काफिला है वो रवां दवा है कराची प्रेस क्लब पहुंचने के लिए। इस दौरान जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी कतारें लग गई हैं। शहीद मिल्लत रोड और FTC की जानिब जाने वाली सड़क है उस पर भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की सूरत हाल सामने आई है। इसी तरह शारा कायदीन है, सदर है, जेल चौरंगी है, यूनिवर्सिटी रोड है, जितने लिंक जो है वो से रास्ते करते हैं, तमाम जो रास्ते हैं इस वक्त ट्रैफिक जाम की शदीद सूरत हाल है। ट्रैफिक हुक्काम का ये अभी कहना है कि रैली जो है जिसकी वजह से जो कि कराची प्रेस क्लब आई है उसकी वजह से ट्रैफिक जाम की तमाम ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैफिक एहलकार सड़कों पर मौजूद है। तमाम हम ये देख रहे हैं कि जो शहरी हैं वो रुल रहे हैं। सदर हो, MA जिन्ना रोड हो, यूनिवर्सिटी रोड हो या फिर ये शारा शहरी जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के बाहर भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक सड़क जो है वो उसको बंद है, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी यहाँ भी शदीद मुतासिर हो रही है। कराची की मेन शाहराहों खास तौर पर MA जिन्ना रोड और शारा फैसल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। वज़ीर KP की कराची आमद पर सेंटर फैसल लॉर्डर का तंजिया तबसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि सुबह सिंध की रिवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी की जाती है। आने वाले को सबसे पहले टोपी मतलब टोपी पहनाई जाती है। PTI के अंदर कंफ्यूजन है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। ज़रूरत इस बात की है कि हौसले से पार्टी को चलाया जाए और लोगों को करीब लाया जाए। फवाद चौधरी की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत में शामिल लोग जिम्मेदारी कबूल करें। हम बार बार डायलॉग की बात करते हैं लेकिन मुल्क में 30% लोग 3 वक्त का खाना नहीं खा सकते। सियासतदानों की लड़ाई में नुकसान अवाम का हो रहा है। और हैदराबाद में जाली करेंसी की गर्दिश ने ताजरों और आम आदमी को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रोज़ाना नकली नोट बाजारों में पकड़े जा रहे हैं। देखते हैं इरफान आराई की रिपोर्ट। ये नकली नोट हैं सारे, ये देखें हम रखते रहेंगे, वो मशीन डिक्लाइन करते रहेगी।
नकालों से होशियार रहें, क्योंकि मार्केट में जाली नोटों का धंधा उरूज पर है। हैदराबाद में नकली नोट तेजी से सरायत कर रहे हैं, जिससे सिर्फ ताजिर ही नहीं, आम शहरियों को भी शदीद नुकसान हो रहा है। दुकानदारों ने अब नोट की पहचान करने के लिए मशीनें रखना शुरू कर दी हैं। डेली कभी 5,000 रुपए का नोट नकली आ जाता है, कभी 1,000 रुपए का नोट नकली आ जाता है, कभी 500 का नोट नकली आ जाता है। ये देखें, अभी हम ये नोट, हमने कैश काउंटिंग मशीन रखी है, अब हमारा बंदा रिकवरी पे जाता है, मार्केट से कहीं से पेमेंट लेके आता है, तो उसको पेमेंट लेके आने में जब हम पेमेंट चेक करते हैं तो डेली इस परेशानी का सामना। शहरियों का कहना है, पैसे जमा कराने बैंक जाते हैं तो कई नोटों पर क्रॉस लगाकर वापस कर दिए जाते हैं। मुताल्लिका हुक्काम मामले को संजीदगी से लें और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई करें। जाली नोट इतने चल चुके हैं कि आप पहचान नहीं कर सकते मशीन के बगैर। ऐसा लगता है जैसे जाली नोट को और इसको दोनों को हाथ में लोगे सेम थिंग लगेगा। मैं पार्टी से पैसे लेता हूँ, अगर वो कैश देते हैं तो उसमें मेरे को 3 बार लगे हैं 5-5 हज़ार नोट। अब हम गरीब बंदे कहाँ जाएंगे, इतनी हमारी झाड़ी नहीं है जितने हमारे नोट लग जाते हैं। नकली करेंसी नोट के धंधे में मुलव्वस माफिया कानून की गिरफ्त से बाहर होने की वजह से अवाम की जेब काट रही है। मईशत में गर्दिश करते ये नकली करेंसी नोट कारोबारी हल्के के लिए शदीद परेशानी का सबब बने हुए हैं। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। बहक हो गए, जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। जबकि 2000 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुजाहिरों में दुकानदार, तलबा और आम शहरी बड़ी तादाद में शरीक हैं, जबकि कई शहरों में बाजार बंद और हड़तालें जारी हैं। हालात के पेश नज़र कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। हुकूमत एहतजाज को बगावत और बैरूनी मुदाखलत करार दे रही है। अमेरिका की जानिब से ईरान को फिर हमले की धमकी दे दी गई। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर मुजाहिरीन को कत्ल करना बंद ना किया गया तो अमेरिका सख्ती से जवाब देगा। इस सिलसिले में अमेरिका बिल्कुल तैयार है, ताहम मुजाहिरीन की बड़ी तादाद भगदड़ के बायस मरी है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड की खरीदारी का मंसूबा बना लिया। 57,000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी को 10,000 से 1 लाख डॉलर्स के एवज अपनाया जाएगा। ग्रीनलैंड से मुतालिक अमरीकी अज़ाइम पर बरतानिया और यूरोपीय मुल्कों ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ग्रीनलैंड की खरीदारी का मुमकिन अमरीकी मंसूबा सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 57,000 आबादी को बराह रास्त 10,000 से 1 लाख डॉलर्स तक अदायगी पर गौर किया जा रहा है। इस इक़दाम का मकसद ग्रीनलैंड के बाशिंदों को डेनमार्क से अलहदगी पर आमादा करने और अमेरिका में शामिल होने के लिए कायल करना है। अमरीकी प्लान पर बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक बिल्कुल खुश नहीं। सदर ट्रंप से मुतालबा कर दिया कि इस इक़दाम से यूरोप में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। याद है कि सदर ट्रंप ग्रीनलैंड के अमरीका में इंज़माम से मुताल्लिक़ बयान दे चुके हैं। उनका कहना था कि हम ग्रीनलैंड के मादनी वसाइल नहीं चाहते, हमें स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सेहत के दुश्मन दरख्तों की सफाई का काम जारी है। पेपर मलबरी तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त है जो इस्लामाबाद में एलर्जी, दमा, खांसी और दीगर सांस की बीमारियों का सबब बनता जा रहा है। 27 नवंबर 2024 को आला सतह इजलास के बाद सेहत के लिए ख़तरा बनने वाले दरख्तों की कटाई की प्लानिंग की गई थी। पेपर मलबरी या जंगली तूत देखने में हरा भरा, तेजी से फैलने वाला पौधा, लेकिन ये दरख्त इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। 27 नवंबर 2024 की हाई लेवल मीटिंग के बाद एडीसी को पेपर मलबरी के खिलाफ वाज़ेह प्लान दिया गया, जिस पर अमल करते हुए 29,115 पेपर मलबरी दरख्त हटाए जा चुके हैं। पॉलिसी के मुताबिक हर एक के बदले 3 मुकामी और माहौल दोस्त दरख्त लगाने का हदफ रखा गया है। पेपर मलबरी दरख्त सिर्फ सेहत ही नहीं, दीगर पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। दीगर पौधों की जगह घेर लेता और ग़िज़ा खा जाता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 2016 रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त में इस्लामाबाद को सांस और दमे के मरीजों के लिए हेल्थ असाइलम समझा जाता था, मगर 1990 के बाद उल्टी सूरत हाल बनी और लोग एलर्जी से बचने के लिए इस्लामाबाद से निकलने लगे। 60 और 70 की दिहाई में पेपर मलबरी को चीन से इस्लामाबाद लाया गया, जिसका मकसद शहर को तेजी के साथ हरा भरा करना था, क्योंकि ये दरख्त तेजी से बढ़ता है। लेकिन अब ये दरख्त सेहत के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। दुनिया भर में पेपर मलबरी को ज्यादा उगने से रोका जाता है। पहले से मौजूद पौधों को काट कर खात्मा किया जाता है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।